دوستو آج ہم آ گئے ہیں تغلق آباد قلعہ۔ یہ تغلق آباد قلعہ کا ہاتھی گیٹ ہے۔ اب اس گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسی گیٹ سے بیل، اونٹ، گھوڑا، ہاتھی اندر جاتے تھے اور باہر۔ اسی گیٹ سے بیل گاڑی اور جو بھی سامان لے جانا ہو تو اسی گیٹ سے اندر جاتے تھے۔ اس گیٹ کا نام ہاتھی گیٹ ہے۔ اسی گیٹ سے ہم اندر جائیں گے اور آپ کو ہم اندر کا نظارہ دکھائیں گے۔ تو دوستو 8 ستمبر 1920 کو دلی کے تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ غیاث الدین تغلق یہ خسرو خان کے ہتھیا کرنے کے بعد دلی کا سلطان بنا۔ غیاث الدین تغلق ایک تاجر کے یہاں نوکری کرتا تھا اور ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھالی کرتا تھا۔ دوسری نوکری کے تلاش میں دلی آیا اور شاہی سینا میں بھرتی ہو گیا۔ 1920 میں تھمبور کی گھیرا بندی میں غیاث الدین تغلق نے اچھا کام کیا، لیکن کچھ سال بعد علاء الدین خلجی نے بادشاہ جلال الدین کی قتل کر دی اور خود کو بادشاہ گھوشت کر دیا، مگر غیاث الدین نے اس کو بادشاہ نہیں مانا اور مرے ہوئے بادشاہ کا حمایت کیا۔ لیکن جلال الدین خلجی اس سے خفا ہو گیا اور اسے فوج سے نکال دیا۔ لیکن غیاث الدین تغلق کچھ سالوں تک گمنامی میں جیا، لیکن کچھ سالوں بعد بادشاہ نے پھر سے اپنے فوج میں بھرتی کر لیا اور اپنے چھوٹے بھائی اغول خان کا پرسنل اسسٹنٹ بنا دیا۔ دوستو یہ جو کنواں آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعے کے اندر کا سب سے بڑا کنواں ہے۔ زیادہ تر اس کنواں کا پانی جو قلعے کے اندر جانور رہتے تھے انہی جانوروں کو پلایا جاتا تھا۔ اونٹ، گھوڑا، ہاتھی، بیل، ان سب جانوروں کو اسی کنویں کا پانی پلایا جاتا تھا اور یہ قلعے کے اندر سب سے بڑا کنواں ہے۔ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، اندر جانے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔ اب ہم کنویں کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ کنواں سنسان پڑا ہوا ہے۔ اب اس کنواں کے اندر پانی بالکل بھی نہیں ہے اور یہ سنسان کنواں ہے۔ اندر جانے میں بھی دوستو کافی ڈر لگ رہا ہے، لیکن دوستو میں آپ کو اندر کا سارا نظارہ دکھاؤں گا۔ تو دوستو جن جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ تو اب ہم کنویں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے کا نظارہ۔ اب نیچے میں کافی جنگل اور پیڑ پودا اگ گئے ہیں۔ یہ کنویں کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کا۔ یہ جو 2 سفید پتھر اوپر دیکھ رہے ہیں وہاں سے بھی پانی نکالتے اور نیچے سے بھی۔ اس کنواں کا استعمال زیادہ تر جانوروں کے لیے کیا جاتا تھا۔ اب میں کنواں سے نکل رہا ہوں۔ 1905 میں امروہہ کی لڑائی میں منگول کی فوج کو ہرایا۔ اس لڑائی میں غیاث الدین تغلق نے
सेना की एक टुकड़ी का कमाल संभाली थी। अगले ही साल 1906 में मंगोलों के हमलों में दिल्ली सुल्तान की ओर से मंगोल पर पहला हमला किया। गयासुद्दीन ने इस लड़ाई में दिल्ली सल्तनत की जीत हुई और बादशाह अलाउद्दीन ने गयासुद्दीन की काबिलियत को पहचान लिया। गयासुद्दीन तुगलक को मुल्तान का गवर्नर बनने के बाद दीपलपुर का भी गवर्नर बना दिया गया। अलाउद्दीन को लगा कि कोई भी मुगलों का हमला मुल्तान या दीपलपुर की तरफ से होता है और इसलिए उसने गयासुद्दीन को वहाँ का गवर्नर बना दिया। वो जानता था ये मुगलों से अच्छी तरह से जीत लेगा और गयासुद्दीन मंगोलों के हमलों को रोकने की काबिलियत रखता है। गयासुद्दीन तुगलक ने बादशाह की इन वहदों पर खड़ा उतरा और मंगोलों को कई बार हराया। दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे किंग प्लेस, जहाँ पे बादशाह और उनकी बीबी रहते थे। ये जो आप इमारतें आप देख रहे हैं टूटी फूटी हुई है, इसी जगह पे ऊंट, हाथी, बैल, घोड़ा रहते थे। ये जानवरों की जगह है, यहाँ पे आराम करते थे, यहीं पे जानवर रहते थे। अब हम आपको दिखाएंगे किंग पैलेस। ये जो नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं, ये है किंग पैलेस। यहीं पे राजा रानी और शाही लोग इसी जगह पे रहते थे। अब ये वीरान पड़ा हुआ है। उस वक्त अफगानिस्तान पे मुगलों का शासन था। उसने मुगलों के शासन पर अफगानिस्तान पर भी कई बार हमला किया। 1316 में बादशाह अलाउद्दीन का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद उसका बेटा मुबारक शाह सुल्तान बना। 4 साल बाद जुलाई 1920 में मुबारक शाह को कत्ल उसके करीबी जनरल खुसरो खान ने कर दी। खुसरो खान ने दिल्ली का बादशाह अपने आप को मुकर्रर कर दिया और उसकी ऐलान कर दी। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का बादशाह मानने से इनकार कर दिया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि उस पर हमला करता। उसे मालूम था उसके पास दीपलपुर की सेना बड़ी कमज़ोर है जो बादशाह से मुकाबला नहीं कर सकती। कुछ समय बाद गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के कुछ पद पर मुकर्रर था। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये टावर है और किले के अंदर ये 6 टावर है। इसी तरह इस टावर में उस वक्त के दौर में फौज रहते थे किले की हिफाजत के लिए। हर टावर से फौज दुश्मन पर कड़ी नजर रखते। अब ये टावर टूट फूट कर बिखर गए हैं। ये जो नीचे आप जंगल देख रहे हैं, उस वक्त के दौर में बादशाह ने
शहर बसाया था। अब ये जंगलों से ये शहर भर गया है। ये जो नीचे देख रहे हैं ये गेस्ट हाउस है। किले के अंदर जो मेहमान आते यहीं पे ठहरते, यहीं पे मेहमान रहते थे। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो खान का मुखालिफत किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दोस्तों के साथ कुछ मीटिंगें की। उसने अपने दूतों को दीपलपुर भेज दिया और अपने पिता से मदद की मांग की। जवाब में गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि आप फौरन दीपलपुर आ जाओ। अगले ही पल वो दीपलपुर के लिए रवाना हो गया। खुसरो खान को मालूम हो गया कि मेरे लिए कुछ मीटिंगें हुई है। खुसरो खान ने फौज को भेजा। फौज नाकाम रही उन्हें पकड़ने में और वह दीपलपुर पहुंच गए। दीपलपुर पहुंचकर गयासुद्दीन ने मीटिंग की मोहम्मद बिन तुगलक के साथ और फैसला किया कि हम उससे जंग करेंगे और अलाउद्दीन के किसी भी सदस्य को तख्त पर बैठाएंगे। उन्हें अपने जासूसों से पता चला कि सिंध से दिल्ली जाने वाला खजाना रास्ते में है, तो उन्होंने उस खजानों को लूट लिया और अपने फौज में बांट दिया। इस तरीके से उनकी सेना थोड़ी मजबूत हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ये वाच टावर है। ये किले के अंदर का सबसे बड़ा वाच टावर है। इसी वाच टावर में सल्तनत का झंडा फहराया जाता था। अब हम आपको गयासुद्दीन तुगलक और ज़फ़र खान का मकबरा यहीं से दिखाएंगे। दो सफ़ेद गुंबद जो आप देख रहे हैं ये गयासुद्दीन तुगलक और ज़फ़र खान का मकबरा है। ऊपर से किले का नज़ारा इस तरीके का है। दोस्तों, अलाउद्दीन के 3 बेटे थे। तीनों बेटे को खुसरो खान ने मार दिया क्योंकि वो तख्त में ना बैठ सके। सरवती और लहरवत की लड़ाई में खुसरो खान को हरा दिया और खुसरो खान वहां से भाग गया। कुछ दिनों तक वो छुपा रहा और फिर खुसरो खान को पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया। ये टावर का सबसे ऊपर का हिस्सा है। यहीं से हम आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। बादशाह के दौर में इस टावर में फौज रहते थे और फौज यहीं से किले की निगरानी करते और दुश्मन पर नज़र रखते थे और सल्तनत का झंडा इसी टावर में फहराया जाता था। ये जो नीचे आप काफ़ी जंगल देख रहे हैं, बादशाह ने अपने दौर में इसी जगह शहर बसाया था। अब ये शहर जंगलों से भर गया है। अब यहाँ इंसानों की आबादी नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे जंगल ही जंगल नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली का तीसरा शहर गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। ये जो आप किला देख रहे हैं ये अलीलाबाद का किला है। इस किला को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। इसके बाद हम अलीलाबाद किले का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक तख्त पर बैठने के बाद उसने बहुत से काम किए। लोगों का लगान माफ किया, नहरों का निर्माण किया, जिन दरबारियों की ज़मीन छीन ली गई थी उनकी ज़मीनें वापस करी। इसने आम जनता का टैक्स माफ़ किया। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया। ये पहला बादशाह था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था
اور ڈاک ویوستھا بھی اس نے پہلی دفعہ لاگو کی تھی، اور جب سوکھا پڑتا تھا تو کسانوں کے لیے اس نے راحت کا انتظام کیا